class 6th and welcome to the online classes of Vinay Small Wonder Secondary School. This is Sanchita and I am taking your English literature. So class, today we are going to start with a new chapter and that is chapter number 5, Jagdish Chandra Bose. Before starting this particular chapter, let's quickly understand what are the new words which we are going to learn in this chapter. The first one is fostered, that means furthered or advanced. The second one is dissecting room, a room where a body is cut apart to study its internal organs and features, which is mostly there in the biology classes. I mean, once you start going towards the biology classes, you have to, when you want to study about the zoology part of it, you need to go in the dissecting room and experiment on frogs and fishes and all that. The second is spurred, which is meant encouraged. Then pioneer, that is someone who is important in the early development of something. यानी जो इन्वेंटर होता है, जो कुछ इन्वेंट करने वाला होता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसने उस पर्टिकुलर चीज़ पे सबसे पहले काम किया हो. स्टिमुलाई, थिंग्स और इवेंट्स दैट कॉज समवन टू मूव और रिएक्ट. जैसे आपको पता है कि सामने से कोई बॉल आ रही है और हमें पता है कि हमें उसे कैच करना है, या जैसे ही इलेक्ट्रिक का झटका लगता है हम एकदम से हाथ को हटा देते हैं, वो होता है स्टिमुलाई. यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करती हो. So let's quickly understand about this person, this scientist. The name of this person is Jagdish Chandra Bose. So do you know names of any famous scientists? Okay, like for example, other scientists were Aryabhatta, I can say. Then we do have other people as well in the field. Can you recall any such names? Like APJ Abdul Kalam. Then we have some of the scientists in the age-old time, C.V. Raman, and there were so many. So one of them was Mr. or Dr. Jagdish Chandra Bose. So we are going to learn about him in this chapter, that how he became a great scientist of India and the world, and how was he in his childhood, and what made him, encouraged him to work on science. So that's what we are going to learn in this chapter. So quickly, let's start. First, let me give you a quick glimpse or a glance on Sir Jagdish Chandra Bose. So this is one of the pic of Jagdish Chandra Bose, where he is demonstrating one of his inventions or the experiments which he was doing. Sir Jagdish Chandra Bose was an Indian biologist, physicist, botanist and an early writer of science fiction. So this gentleman was not only biologist, वो biologist भी थे, वो physics के ऊपर भी काम कर रहे थे, वो botanist भी थे यानी plants के ऊपर भी काम कर रहे थे, और early writer of science fiction. Science fiction का मतलब हम science fi movies देखते हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, तो वो कोई ना कोई राइटर लिखता है. तो मिस्टर जगदीश चंद्र बोस जो थे वो भी एक साइंस फिक्शन राइटर थे. He pioneered the investigation of radio and microwave optics, made significant contributions to plant science and laid the foundations of experimental science in the Indian subcontinent. उन्होंने न सिर्फ रेडियो पे इन्वेस्टिगेशन किया, रेडियो वेव्स पे इन्वेस्टिगेशन किया, उसी के साथ उन्होंने माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पे भी काम किया. पायनियर का मतलब मैंने बताया था आपको, जो सबसे पहले किसी फील्ड में काम करे. उनके इन्वेस्टिगेशन की वजह से, उनके काम करने की वजह से बाद में रेडियो वेव्स आई. उन्होंने वाईफाई पे भी काम किया. जो आज हम वाईफाई यूज़ करते हैं उसमें सब पायनियर जगदीश चंद्र बोस ही माने जाते हैं. घर पे आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, उसका भी देखा जाए तो सबसे पहले उस पर भी काम एक्चुअली जगदीश चंद्र बोस ने किया था. इसी के साथ में उन्होंने प्लांट साइंस के ऊपर भी काम किया, नए नए स्पीसीज ब्रीडिंग करवाई प्लांट्स की, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइंस की का फाउंडेशन, नींव का पत्थर तैयार किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. उस टाइम इंडिया में इतने साइंटिस्ट नहीं थे, तो वो आप कह सकते हो कि उन्होंने आने वाली जनरेशन को एक्चुअली मोटिवेट किया कि इस फील्ड में काम किया जा सके. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Sir Jagdish Chandra Bose
was born on 30th November 1857 in Mymensingh. Mymensingh is now in Bangladesh. तब तो बांग्लादेश नहीं था, पूरा इंडिया एक ही था. सो जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30th नवंबर 1858 को कहाँ हुआ था? मायमनसिंह, जो कि एक सिटी है बांग्लादेश की. From an early age, the boy was full of questions. He wanted to know about everything that happened around him. तो जो बहुत ही कम एज से जगदीश चंद्र बोस बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे, बहुत ही उत्सुक चाइल्ड थे, जो हर चीज़ में क्वेश्चन पूछते थे. ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है. जस्ट आपने उनको बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है तो वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो लॉजिक जानना चाहते थे, उसके पीछे का रीज़न जानना चाहते थे. तो हमेशा उनको क्यूरियोसिटी थी, और जिसको क्यूरियोसिटी होती है उसी को ज्ञान मिलता है. तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, हर चीज़ में वो क्वेश्चन पूछते थे. उनको सब जानना था कि उनके आसपास में जो हो रहा है उसका कारण क्या है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. व्हाट इज़ अ ग्लो बॉम्ब, इज़ इट फायर और स्पार्क. ये जो हम जुगनू देखते हैं रात को, आप कई बार फॉरेस्ट एरिया में या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बगीचे में जाएंगे तो आपको जुगनू दिखते हैं, जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो रात को ग्लो करते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लो बॉम्ब. तो वो कहते थे कि ग्लो बॉम्ब क्या चीज़ है, उनके अंदर क्या फायर है, उनके अंदर क्या आग जल रही है या स्पार्क हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, ये ऐसे जल क्यों रहे हैं रात को, ऐसे चमक क्यों रहे हैं. Why does the wind blow? उनका क्वेश्चन था कि हवा क्यों बहती है. हमने कह दिया हवा बहती है, उनका क्वेश्चन था क्यों बहती है, कहाँ से बहती है, किस लिए बहती है. Why does the water flow? पानी क्यों बहता है, पानी एक जगह पे स्टैटिक क्यों नहीं रहता है, पानी हमेशा फ्लो क्यों करता रहता है. तो उनके क्वेश्चंस ऐसे होते थे. He was curious about everything. His father, भगावन चंद्र बोस, would answer as many questions as he could. उनके पिता, जिनका नाम था भगावन चंद्र बोस, वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपने बच्चे के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सके, जितना भी चाहिए वो जवाब देते थे. उनकी जगदीश चंद्र बोस की क्यूरियोसिटी को कम करने की कोशिश करते रहते थे. जगदीश पेरेंट्स took great interest in his upbringing and helped shape his strong and courageous character. तो उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको डांट के चुप नहीं कराया. उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता ने हमेशा उनकी अच्छी परवरिश की. अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश, टू मेक समवन ग्रो. बहुत अच्छी परवरिश की, और इसी वजह से जगदीश चंद्र बोस का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और करेजियस बना, बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही करेजियस, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, किसी से भी नहीं डरने वाले. ना वो डरते थे क्लासेस में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में सवाल पूछने से, ना वो डरते थे ब्रिटिशर्स के सामने, ना वो डरते थे कहीं भी. जब उन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर भी की तो कभी भी उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को दबाया नहीं. उन्होंने हमेशा क्वेश्चंस पूछे, लोगों से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है. तो हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस का जो कैरेक्टर डेवलप हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके पेरेंट्स का है. सो द वे Mr. Jagdish Chandra Bose developed himself, that was because of his parents, because of his upbringing, the way he has been given the training, the way his parents encouraged him, that this curious child became one of the greatest scientists of the world, Sir Jagdish Chandra Bose. A born scientist, he learned many things by studying at home on his own. As a boy, he had a number of hobbies that fostered his interest in science. तो एक बॉर्न साइंटिस्ट थे, एक जन्मजात साइंटिस्ट थे, वो जन्म से ही साइंटिस्ट थे. उन्होंने बहुत सी चीज़ें घर पे पढ़ाई करके अपने आप ही सीखी. जब तक स्कूल नहीं गए वो, जब तक बाहर नहीं गए, तब तक घर पे ही पढ़ाई करते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे और बहुत सी चीज़ें खुद सीखे. यानी हम चाहें तो हम नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करके और डेवलप कर सकते हैं. जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनकी बहुत हॉबीज़ थी, उनकी बहुत इच्छाएं थी, वो बहुत चीज़ें करते थे. दैट फॉस्टर्ड का मीनिंग हमने पढ़ा क्या था. फॉस्टर्ड का मतलब होता है फर्दर्ड या एडवांस्ड. सो उनकी उन्हीं इच्छाओं की वजह से वो काफ़ी एडवांस रहे. तो इसी वजह से उनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि रीज़न जानने की कोशिश करने लगे, लॉजिक जानने की कोशिश करने लगे. ही यूज्ड टू ब्रीड frogs and fish in a pond
नियर हिज हाउस, अपने घर के पास में एक तालाब था। पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब। वहाँ पे वो एक्चुअली में रिप्रोड्यूस करवाते थे फ्रॉग्स एंड फिश का। उनका एक आप कह सकते हो उनकी ब्रीडिंग कराते थे। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, तो वो ये करते थे। ही वुड पुल आउट जर्मिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व देयर रूट सिस्टम्स। जर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे पौधे जो जर्मिनेट हो गए हैं टू स्टार्ट ग्रोइंग। सो वो प्लांट्स को, जो पौधे हैं उनको एकदम जड़ से निकाल लेते थे, उनके रूट से निकाल लेते थे और उनके रूट्स को देखते थे कि ये प्लांट्स के नीचे रूट्स जो हैं ये नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं, या ये रूट्स प्लांट को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे प्लांट ये इस तरह से हैं। तो वो सारी काम करते थे। इन 1869 भगवान चंद्र वॉज ट्रांसफर्ड टू वर्धमान and Jagdish was sent to study at St. Xavier's School in Calcutta, now Kolkata। 1896 में भगवान चंद्र बोस, जो जगदीश चंद्र के फादर थे, उनका ट्रांसफ़र वर्धमान में हो गया। वर्धमान एक सिटी है वेस्ट बंगाल में, और जगदीश चंद्र को उन्होंने भेजा सेंट जेवियर स्कूल कैलकाटा का, जो आज कैलकाटा, वी नो दैट कैलकाटा इज नोन एज कोलकाता नाउ, एंड सेंट जेवियर इज वन ऑफ द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स इन कैलकाटा टुडे। सो सेंट जेवियर स्कूल में उनको भेजा गया। देन एट द एज ऑफ 16 ही जॉइंड सेंट जेवियर्स कॉलेज टू परस्यू हिज ग्रेजुएट डिग्री। तो 16 साल की उम्र में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जगदीश चंद्र बोस ने सेंट जेवियर कॉलेज ही ज्वाइन किया ताकि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी मेडिसिन। क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमेशा से साइंस में था, बायोलॉजी में था, जूलॉजी में था, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा कि फ्रॉग्स का यानी मेंढकों का और मछलियों का वो ब्रीडिंग कराते थे, रिप्रोडक्शन कराते थे, प्लांट्स को जड़ से उखाड़ के उनके रूट सिस्टम को स्टडी करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ, यानी मैं डॉक्टर बनता हूँ। ओके, उनकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, और इसलिए मेडिसिन पढ़ने के लिए वो कहाँ जाते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं। ओके, सो however, Jagdish could not tolerate the atmosphere in the dissecting room and decided to quit studying medicine. It was then he decided to study physics instead and joined Christ College, Cambridge. So क्या हुआ, जगदीश चंद्र बोस ने तो पहले सोचा कि मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ और उसके लिए वो इंग्लैंड गए, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करनी शुरू की मेडिसिन की, डॉक्टरी बनने का उनका प्रोसेस शुरू हुआ, डाइसेक्टिंग रूम यानी चीर फाड़ वाला रूम, जहाँ पे फ्रॉक्स को काट के, फिशेस को काट के उनकी स्टडी किया जाता है, वहाँ पे बहुत स्मेल आती है। ओके, सो उसको वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए, डाइसेक्टिंग रूम की जो इतनी स्मेल थी। और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, एंड ही क्विट मेडिसिन, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी। उन्होंने देन डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में भी उनको इंटरेस्ट था, तो मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, और इसलिए उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में एक क्राइस्ट कॉलेज है बहुत ही फेमस, वहाँ पे उन्होंने इसको ज्वाइन किया। बोस रिटर्न टू इंडिया इन 1885 आफ्टर गेटिंग हिज BSc डिग्री फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। जगदीश चंद्र बोस 1885 में वापस इंडिया आए BSc डिग्री लेकर लंदन यूनिवर्सिटी से, एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तब का लीडिंग कॉलेज था इंडिया का, और वर्ल्ड में भी इसका नाम था। तो वो पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज जब आया, ब्रिटिशर्स ने ही इस कॉलेज को बनाया था, क्योंकि इंडिया तब इंडिपेंडेंट नहीं था, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो यहाँ के सारे जो प्रोफेसर्स थे वो एक्चुअली में फॉरेनर्स थे, ब्रिटिश थे, बट हमारे जगदीश चंद्र बोस पहले इंडियन थे, जिनको प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रखा गया। सो आप समझ सकते हैं कि अगर उनको ये पोस्ट दी गई थी तो वो कितने ज़्यादा जीनियस रहे होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिल उन्होंने जीता और उनको अपॉइंट किया गया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा। सो दैट एंड्स आवर video today. I request you guys to please read the lesson so that we can take it ahead in our next video. Till then, please take care of yourself and family. Thank you.